اور غیر شرعی ہوگا۔ 99% جو ہبا کے کیسز ہیں فیک ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ایسا باپ یا ماں اتنے ظالم نہیں ہے کہ کسی ایک بیٹے کے نام پراپرٹی لگا دیں، باقیوں کو محروم کر دیں۔ اگر ایک نابالغ کے حق میں اگر کوئی باپ پراپرٹی ہبا کر جاتا ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ناظرین، ویلیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اشرف ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو ٹی وی ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہم لوگ موجود ہیں لاہور کی سیشن کورٹ میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ہائی کورٹ وسیم راجپوت صاحب۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے ایک اہم معاملے پہ ہم بات کریں گے، ہبا کیا ہے اور ہبا کرنا کیا کسی کو جائز ہے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ ہبا کیا ہے؟ جی ہبا، اگر کوئی ہبا صرف مسلمان جو ہے وہ اس کے مسلمان کو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی باپ اپنی زندگی میں اپنی پراپرٹی، اس کی ذاتی جو ملکیت ہے، وہ کسی اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو ہبا کر سکتا ہے اپنے زندگی میں، تو گفٹ، یعنی کہ ہبا کو ہم انگلش میں گفٹ کہیں گے، گفٹ کر دینی کوئی پراپرٹی۔ ہبا بذات خود جب انسان کی دوسری پارٹی کو کر دیتا ہے، اس میں 3 چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انگریڈینٹ ہیں، یعنی کہ آفر، ایکسیپٹنس اور پوزیشن۔ جب کوئی بندہ اپنی پراپرٹی اپنے بچوں کو ہبا کر دے گا، گفٹ کر دے گا، تو وہ پراپرٹی اس کو رجسٹرار سے کروانا انتہائی ضروری ہے۔ اگر تینوں انگریڈینٹ پورے ہوں گے تو ہبا یا گفٹ ان کو ٹرانسفر کر سکتا ہے۔ تو یہ صرف مسلمان، یعنی کہ مسلمان کو ہی کر سکتا ہے، یعنی کہ کرسچن کے اندر ہبا کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، کیا ایک باپ اپنے ایک بیٹے کو اپنی ساری جائیداد ہبا کر کے بیٹیوں کو اس حق سے محروم کر سکتے ہیں؟ جی، اس بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ ہے، جیسے فائز عیسیٰ کی، کوئی بھی، اور لاہور ہائی کورٹ کی بھی ججمنٹ سے بے تحاشا اس میں ہبا کے بارے میں، گفٹ کے بارے میں دی۔ اگر کوئی شخص اپنے کسی باقی وارثان کو جو محروم کرتا ہے پراپرٹی سے، کسی ایک شخص، یعنی ایک بیٹے کے نام یا بیٹی کے نام پراپرٹی لگا دیتا ہے، باقیوں کو محروم کر دیتا ہے، ایسا جو کسی کو وراثت سے محروم کرنا، یہ غیر قانونی ہے اور غیر شرعی ہے۔ جیسے فائز عیسیٰ کی ججمنٹ 2020 SCMR A179 پیج ہے، اس میں انہوں نے کلیئر بتا دیا کہ ایسا ہبا جس سے باقی وارثان جو ہیں وہ محروم ہو، تو ایسا کالعدم ہوگا۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر ایک باپ کورٹ میں آ کے یہ ثابت کرتا ہے کہ میرے ایک بیٹے نے مجھے پیسے دے کر میرے سے میری جائیداد خریدی ہے اور باقی بیٹیاں جو ہیں وہ آلریڈی آٹومیٹکلی اس حق سے محروم ہو جائیں گی، تو کیا یہ جائز ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ جی، اس بارے میں یہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص، وہ آنر ہے پراپرٹی کا، وہ اپنی زندگی میں سیل کرتا ہے، یعنی کہ اب ہبا سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے، اب اس نے ایک بیٹے کو بیچ دی ہے، وہ اپنی زندگی میں بیچ سکتا ہے، جس کو مرضی سیل کرے، لازمی نہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو سیل کر رہا ہے، کسی تھرڈ پارٹی کو سیل کر دے، وہ مالک ہے اپنی زندگی میں، وہ اپنی پراپرٹی سیل کر، عدالت میں آ کر اگر وہ کہہ دیتا ہے کہ جناب میں نے فلانے بندے کو سیل کر دی تھی، میرے بیٹے نے خرید لی، اس کے لیے وہ اگر جو اس میں ایگری پارٹی جو ہوگی، جو اس کے بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں جن کو جو اس پراپرٹی سے محروم ہوئے ہیں، ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ پراپرٹی ہمارے باپ نے کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی پیسہ، یہ بس صرف انہوں نے اس کے پریشر میں آ کر یا کسی طریقے سے۔ اور ایک اور چیز ویری امپورٹنٹ، باپ کی وہ ایج کو بھی دیکھا، یعنی کہ 70 سال کی عمر سے اوپر والا جو اس طرح کا جو سین ہوتا ہے وہ ڈاؤٹ فل ہوتا ہے۔ اگر وہ دوسری پارٹی جو محروم پارٹی ہوئی ہے پراپرٹی سے، اگر وہ ثابت کر دیتی ہے، لیکن اگر باپ نے عدالت میں آ کر بیان دے دیا کہ میں نے پراپرٹی خود بیچی ہے، میں نے ان سے پیسہ وصول کر لیا ہے، تو وہ پھر قانونی طور پہ تو وہ اگر وہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، بینیفیشری جس نے کہا میں نے باپ سے یہ پراپرٹی خریدی ہے اور باپ بھی بیان دے دیتا ہے، تو باقی جو باقی بچے محروم ہیں، تو اس میں یعنی کہ سوال یہ، قانون یہ کہتا ہے کہ جو مالک ہے وہ اپنی زندگی میں پراپرٹی سیل کر سکتا ہے، اس میں کوئی بچہ، کوئی بیٹا یا بیٹی انٹرفیئر نہیں کر سکتے۔ وسیم صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ہبا بحق غیر وارثان اور ہبا وارثان کیا کہلاتا ہے؟ اس میں بحق غیر وارثان ہوگا جس کی جو پراپرٹی کا آنر ہے، پراپرٹی کا مالک ہے، وہ اپنی زندگی میں اگر اپنے بیٹے بیٹیوں کے نام پراپرٹی ہبا کرتا ہے، وہ تو اس کے بحق وارثان آ گئے۔ تو اب دوسرے جو ہیں، اب ان کے بغیر اگر وہ کسی تھرڈ پارٹی کو
ये प्रॉपर्टी हिबा कर देता है बंदा, तो वो उसके वारसान नहीं है। अगर वो इस तरह का जो हिबा करेगा अपने वारसों को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी को करता है, सपोज दैट एक 2016 की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट है जिसमें बाप ने अपने भतीजों को प्रॉपर्टी हिबा कर दी, अपने बच्चों को उसमें महरूम किया। ऐसा फेल, ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी थर्ड पार्टी को यानी कि वारिस नहीं थे, यानी कि ब्लड रिलेशन नहीं था उनका, वो अपने बेटों को छोड़कर अपने भतीजों के नाम प्रॉपर्टी कर रहे हैं, ऐसा जो हिबा होगा वो गैर कानूनी होगा और गैर शरई होगा। वसीम साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक बाप अगर आके ये कह दे कि मैंने अपनी सारी जायदाद अपनी औलाद होने के बावजूद अपने पोतों या भतीजों के नाम कर दिया, तो क्या वो हिबा जायज़ होगा? नहीं, ये कानूनी तौर पर और शरई तौर पर ये गैर कानूनी है और गैर शरई है। ये 2016 ऐसी है हमारी ये जजमेंट है इसकी, और उसमें ऑनरेबल कोर्ट ने क्लियर बता दिया कि ऐसा हिबा जिससे उसके वारसान को महरूम कर दिया जाए, ऐसा जो हिबा होगा वो गैर कानूनी होगा और गैर शरई होगा। वो भतीजों के नाम नहीं कर सकते क्योंकि उसकी अपने जो बेटे बेटियां मौजूद हैं उनको वो अपनी प्रॉपर्टी से महरूम करके भतीजों के नाम प्रॉपर्टी हिबा करनी गैर कानूनी है। मुझे ये बताइएगा कि हिबा जो है वो अगर बेटियों को और बेटे को अपनी ज़िंदगी में किया जाए तो इसका क्या कानून होगा और ये किस तरह कर सकते हैं कि ये बराबर का हिस्सा तकसीम होगा, या जो इस्लाम हमें कहता है कानून के लिहाज से कि बेटी को आधा हिस्सा और बेटे को एक पूरा हिस्सा मिलेगा, ये उस लिहाज से तकसीम होगा? जी, इसमें यह तरीक़ाकार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो जब प्रॉपर्टी इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने बेटों बेटियों के अंदर अगर वो तकसीम करेगा या हिबा करेगा, तो अगर एक इस्लामिक नुक्ता नज़र से उसको देखा जाए तो वो उनके में मसावी करेगा, क्योंकि ये जो कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि 1/4 बेटी है, बेटा 1/2, इसी तरह अगर बीवी है, बेवा है, वो 1/8 है। ये जब मरने के बाद विरासत होती है, मरने के बाद, मरने से पहले बंदा अगर अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी देगा तो उसको चाहिए कि वो उन बच्चों के अंदर इंसाफ करे, बराबर तकसीम करे। ये जो बाकी जो तरीका विरासत बताए, विरासत तो मरने के बाद होनी है, मरने के बाद वही तरीक़ाकार है विरासत का। बेटा 1/2 है, बेटी 1/4 है, बेवा 1/8 है। इसी तरह अगर औलाद नहीं है उसका तरीक़ाकार क्या है, यानी कि एक विरासत एक अलग बहुत लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा टॉपिक है, उसमें हम डिस्कशन करेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। लेकिन वो अगर अपनी ज़िंदगी में करेगा, अपने बेटा बेटियों को वो मसावी करेगा, उनमें इंसाफ करेगा, बराबर का वो तकसीम करेगा, तो उसमें ये नहीं होगा कि वो अपनी बेटी को 1/4 दे रहा है, बेटे को 1/2 रहा है। ये नाइंसाफ़ी ज़िंदगी में नहीं वो कर सकता। हाँ जी। मुझे ये बताइएगा कि अगर बाप की वफ़ात के बाद बेटा अदालत में आकर ये कह दे कि मेरे बाप ने मुझे ये तोहफ़े के तौर पर प्रॉपर्टी दे दी थी, उस बारे में कोर्ट क्या कहता है? जी, इस बारे में ये जैसे फ़ायद ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उनकी जजमेंट आ जाती है 2020 SCMR 179, जिसमें ये कहा गया कि अगर इसमें सीन यही हुआ था कि एक बेटे ने अपनी बहनों को प्रॉपर्टी से महरूम कर दिया। उसने कहा ये ज़िंदगी में मेरा बाप मेरे नाम प्रॉपर्टी हिबा कर गया था, गिफ्ट कर गया था। और इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें अदालत में बेनिफिशरी का काम है कि बेनिफिशरी ने इस प्रॉपर्टी, इस हिबा को साबित करना है कि मेरे बाप ने की थी। उसने बाकायदा तौर पे वो प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड भी करवाई है कि नहीं, वो जो साइन अंगूठे हैं वो भी उसके बाप के थे। मोस्टली यहाँ पे जो प्रैक्टिस है 99% जो हिबा के केसेस हैं 99% फेक होते हैं। ये जो हिबानामा बनाए जाते हैं इस दौर में जो 99, क्योंकि मोस्टली हिबानामा तैयार कर बंदे की डेथ हो गई है, बाप की डेथ हो गई है, उसके बाद वो जो हिबा सारी पुरानी डेटों में वो स्टाम्प वगैरह बना लो, ये बाप ने साइन अंगूठे लगा के दे दिया। कोई भी मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा बाप या माँ इतने जालिम नहीं है कि किसी एक बेटे के नाम प्रॉपर्टी लगा दें, बाकियों को महरूम कर दें। ये बहुत कम 1% होंगे जो कहते हैं। लेकिन कुछ लोग आग कर देते हैं, जी हमने अपनी प्रॉपर्टी से आग कर दिया। आग सिर्फ कॉलो फेल की हद तक होता है। प्रॉपर्टी जो वरासत, जब बंदा मर जाएगा, फौत हो जाएगा, दुनिया पर्दा कर जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली वो बंदा वारिस बन जाएगा। इस तरह का जो सीन होगा वो गैर कानूनी होगा, गैर शरई होगा। अगर वो बंदा कहता है जी अदालत में जाता है, लो ये प्रॉपर्टी मेरा बाप लगा गया था, अब वो बेनिफिशरी है, बेनिफिशरी का काम है वो अदालत में साबित करे कि इसमें 3 इंग्रेडिएंट है। ऑफ़र, बाप ने ऑफ़र की,
एक्सेप्टेंस इसने कबूल की, और आगे पोजेशन भी उसके पास है भी कि नहीं है। मोस्टली ये होता है कि उसमें बाकी बहन भी घर के अंदर बैठे होते हैं, बाप मर गया और बाद में वो कहते हैं प्रॉपर्टी मेरे, चलो सारे बाहर निकलो। अदालत में या तो वो बंदा आके इधर केस कर देता है कि किराएदारी का केस कर दिया, ये बाप मुझे हिबा कर गया, मेरे नाम प्रॉपर्टी है, लिहाजा ये मुझे इनको बाहर निकाला जाए। इसके लिए इसको साबित करना सबसे मुश्किल होता है। तो कोई बाप भी इतना ज़ालिम नहीं है कि वो सिर्फ एक बेटे को या एक बेटी को प्रॉपर्टी दे के निकल जाए। हाँ, एक चीज़ है, अगर एक शख्स की खाली 2 बेटियां या 3 बेटियां या 4 बेटियां या 1 बेटी है, वो अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी के नाम प्रॉपर्टी हिबा कर देता है, या तो नाम लगा देता है वैसे कर, या उसके अपनी बेटी के नाम हिबा, मतलब मेरे मरने के बाद मैं अपनी ज़िंदगी में वो उस चीज़ को प्रॉपर्टी अपनी एक बेटी के नाम हिबा कर देता है। उसको पता होता है कि हाँ, और जब वो मरेगा, फौत होगा, तो वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली उसके जो भाई हैं, अगर वो ज़िंदा हैं वो मालिक बन गया, हिस्सेदार बन गया। बेटी को तो 1/2 हिस्सा मिल जाएगा उसमें से, क्योंकि उसकी बेटा नहीं है, और बेवा को 1/6 हिस्सा मिल जाएगा, 1/4 मिलेगा। इसी तरह वो बाकी प्रॉपर्टी अगर भाई हैं तो ठीक है, नहीं है तो वो उसके भतीजों को चली जाएगी। इसलिए मोस्टली इस तरह का मेरे पास एक केस आया है जिसमें सिर्फ बेटियां थी उसकी, उसने अपनी ज़िंदगी में एक उसकी बेटी, उसने अपने बेटी के नाम प्रॉपर्टी हिबा कर दी, और क्योंकि उसे पता था मेरे भाई और उसका अपने भाइयों के साथ मिलना जुलना भी नहीं था, कोई हेलो हाय भी नहीं था, उसके भतीजों ने केस कर दिया कि हमारा ताया फौत हो गया, ये प्रॉपर्टी छोड़ गया और हमारा जो एक इसमें से जो हिस्सा बनता है हमें दिया जाए, और ये हमारी कज़न थी, चाचे की बेटी है, और इसका जो 1/2 हिस्सा बनता है बाकी प्रॉपर्टी हमें दी जाए। लेकिन वो लड़की ने फिर बकायदा, हमने उसमें साबित किया अदालत में कि बाप अपनी ज़िंदगी में प्रॉपर्टी उसके, जब वो बच्ची नाबालग थी, ये वेरी इंपॉर्टेंट ये जजमेंट भी है, अगर एक नाबालग के हक़ में अगर कोई बाप प्रॉपर्टी हिबा कर जाता है, वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। चैलेंज करें क्योंकि वो नाबालग को उसने प्रॉपर्टी उसके, क्योंकि अगर वो बच्चा बालग था, बच्ची बालग की हालत में ही होगा, एक्सेप्ट उसने प्रॉपर्टी हिबा ना उसके ऑफ़र की, कबूल आगे से उसने ऑफ़र कबूल की, एक्सेप्टेंस की, उसके बाद पोजेशन लिया। लेकिन नाबालग के नाम ये ज़रूरी नहीं होता कि वो नाबालग को अब जवान हो के उस चीज़ को प्रॉपर्टी को वो साबित करें, ये चैलेंजेबल नहीं होता। तो लिहाजा वो इस तरह के सीन होते हैं हिबा के बारे में। जी मुझे ये बताइएगा, क्या बाप अपनी औलाद होने के बावजूद अपनी ज़िंदगी में अपनी प्रॉपर्टी भाइयों के नाम कर सकता है? जी, ये वही, क्योंकि वरासत कानून वरासत में बेतहाशा हिबा के बारे में ये प्रॉपर्टीज़ के इस तरह का जो सीन होता है, बाप अपनी नंबर 1 तो ऑनर जो होगा वो अपनी प्रॉपर्टी किसी भाइयों के नाम, अगर भाई ख़रीद लेते हैं तो फिर तो वो बेच सकता है अपनी ज़िंदगी में, जिसको ABCD जिसको मर्ज़ी चाहे बेचे। अगर हिबा अगर वो करेगा, अपने भाइयों के नाम करेगा, अपने भतीजों का नाम करेगा, अपनी औलाद को उस प्रॉपर्टी से महरूम करेगा, ये गैर कानूनी और गैर शरई होगा। ये लाहौर हाई कोर्ट की भी जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी बेतहाशा जजमेंट्स हैं। तो इस तरह का जो फेल होगा, कब होगा, तो वो गैर कानूनी होगा, गैर शरई होगा। वसीम साहब, आपने अभी तक हमें जो बातें बताई हैं उससे तो यही लगता है कि बाप हर हाल में अपनी औलाद को हिस्सा देने का मजाज है, उसको देना ही पड़ेगा। मुझे ये बताइएगा, क्या अगर बाप बिस्तरे मर्ग पर हो तो वो अगर किसी को हिबा करेगा तो वो हिबा जायज़ होगा, माना जाएगा? अगर बिस्तरे मर्ग की सूरत में अगर कोई बाप हिबा करेगा अपनी औलाद को, वो गैर कानूनी होगा, क्योंकि बिस्तरे में उस बंदे को अपना ही नहीं पता कि वो कब वो इस इतना सख्त बीमार 80 से 90 साल के करीब उसकी एज है, बिस्तरे मर्ग पर बैठा है, उसको तो अपना ही नहीं पता, तो वो हिबा कैसे कर सकता है? वो गैर कानूनी होगा। सर, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वसीम राजपूत साहब, जो हमें आगाह कर रहे थे कि हिबा होता क्या है। उसके बाद उन्होंने हमें अदालत के मुख्तलिफ ऑर्डर्स भी हमें बताए कि अदालत इस बारे में क्या कहती है। इसी के साथ अपने मेज़बान अशरफ ज़ुल्फ़िकार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।